ہو رہے اس کی ایگزاٹک جو اسٹیٹس ہے آپ کے پاس اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ ایگزاٹک ہی ہے لیکن یہاں پہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. میرے تو کل پریزنٹیشن ایگزاٹک ہے کیونکہ ہم نے اس کو آپ کلر میں Yes, with addition of leptos. آپ یہ لے آئے اسماعیل صاحب یہ واپس کر دیں یہ واپس کر دیں ہمارے پاس اسماعیل صاحب یہ ٹائپ کریں ایگزوٹک سے نیچرلائز پہ لے کے جائیں گے تو پرابلمس ہوں گے. جسٹیفائی نہیں کر سکتے میں ٹیکنیکلی نہیں ساری چیزوں کو سوشل اور ٹیکنیکل تو اس کو لوکلی اڈاپٹیڈ. دیکھیں نیچرلائز کا لفظ جو ہے یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہم تو آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تو نیچرلائزڈ ہے کہ اڈاپٹیڈ ہے. اڈاپٹیڈ کی نیچرلائز ہوتی ہے بالکل. وی آر ناٹ ڈیسائڈنگ اس کو ہم شدید نہیں کہہ رہے بلکہ ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ از اٹ نیچرلائزڈ اور ناٹ. اب وہ نیچرلائزڈ ہے تو دس از ایگزاٹک مینس ابھی 4 نمبر بتاؤ. 4 نمبر بتائیں جی کیا چیز اڈاپٹیبل ہو گیا کیا اڈاپٹیو اڈاپٹیو extensive competence most insect attack resist mostly insect wood based products جو آپ بناتے ہیں good raw material for wood based industry. Good raw material for wood based industries. کے بارے میں سر جی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے پانی سر جی میں یوز کی وجہ سے اور کہ کریکس بن گئے تو مطلب کوئی اچھا وعلیکم السلام. صحیح ہو گیا بھائی میں تھوڑا سا کچھ اس کو کوشچن کو ریلیٹ کریں گے نا آگے جاتا ہوں پھر آپ چلنے کے دوست بتا دیجیے. جس میں آم بھی ہوتے ہیں جس میں انگور بھی ہوتے ہیں جس میں مانڈا بھی یہ تو ہو نہیں نو efficient but with a high سائنا سے لے کے گولان ہائٹس انہوں نے کہا اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں گرینری چاہیے. دا اونلی ٹری دے کوڈ فائنڈ اور پورا انہوں نے یہ جی ایم کمیونٹی بنائی تھی کہ دنیا کی ہر اس کو جو اس کلائمیٹ میں اڈیپٹ کر کے زیادہ اچھا تو آپ یہ مت کہیں کہ اگر واٹر صرف واٹر ٹیبل کی بات water efficient per unit massa per unit weight of timber یا کیا wood mass per unit weight of biomass ٹھیک ہے. اور میں وہ نیگیٹیو جو ہے ڈیموکریسی کے طرف جاتا ہوں ایڈورس ہوں گے سارا ٹھیک ہے. مینیجیبل سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے ایڈورس ہمارے پاس یوکلپٹس پڑا تھا ہم نے ٹریٹ کر کے کرا تھا ہم لگا دیں
20 साल तक मैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर देखता रहा PFI लिखा हुआ वर्किंग ऑल राइट। इतने पैसे बचते थे वापडा के कि दे कुडंट बिलीव, लेकिन उन्होंने कहा जी आप हमारी रोटी पर लात मारना, हमें कमीशन जो मिलता था वो खत्म हो जाए। तो ये आइडियल देखें ना, शटरिंग के लिए आइडियल है, पिट प्रॉप्स के लिए, माइनिंग के लिए इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है इसको ठीक कर, सारा कोयटा में ये जा रहा है। अल्लाह हमें माफ करे। देखिए कितने बंदे ग्राउंड वाटर लिए वाटर टेबल है सर कहाँ तक पहुँच गए? दुनिया कड़ी कम से कम शुड बी ग्रेस का ना। कर लेते हैं। अभी सर तो दिल्ली अच्छी है दिल्ली ये है कि सर्दी लगती है सर जी। नहीं कोड आपने नया लिया है। सर ये हमारे दूसरे प्रोविंसेस के लोग हैं, बाकी तो काफी ये 80 से ज्यादा है ना सर। जी जी क्योंकि हाल में और जगह नहीं है। कौन से आदमी किया? ये कमेटी रूम में। अच्छी कमेटी जी जी अच्छा चले जी। फाइनल क्या क्या बस सर इसी में जा रहे हैं कि ये जो है ना ये प्रोपेगेंडा जो है ना बेजवाब है। मतलब ये हाँ बिल्कुल ना तो سمنا मैं इधर لكن سيبدأ لا 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 كده ست इंस्टीट्यूट्स की लोग की P5 की गढ़वाला फैसलाबाद की ये कंजर्वेटर है और उसकी गढ़वाला फैसलाबाद जो रिसर्च हमारे PPRI की वहाँ पे है वो आए थे लाहौर सलाइन एंड वाटर लॉक उसके थे तो सब ने वहाँ पे जिला की वहाँ पे जो उसकी वो आए थे तो तकरीबन सब ने इसके हक में अपना वो किया मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से और उसमें ये था कि तकरीबन नेगेटिव एस्पेक्ट उसको तकरीबन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया थोड़ा डॉक्टर इकबाल सियाज साहब हमारे आपका बड़ा नाम सुना है लेकिन आपसे मुलाकात नहीं एक आध दफा में आया था और आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुझे किसी ने बताया काफी आपने काम किया है ये सोचते हैं ना। हाँ जी आपकी सिर्फ कैसी है? सर हमने मैक्सिमम इन्विटेशन सबको भेजे थ्रू आउट द कंट्री और माशाल्लाह क्योंकि सर इस दिनों के ना बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन 7-8 तो सर वो हमारा फर्स्ट पे एक प्रोग्राम आ गया वो हमें तो नहीं पता तो हमने तो एक महीने पहले जो सब जो भेजे हुए थे तो अभी जो ज्यादा चीज साहिबान है वो उसी वजह से जो ना खुद नहीं आ सके ना तो उनकी जो नुमाइंदगी उनके लोगों ने की है। जी जी वो एक कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की वो थी बाटी डिपार्टमेंट की वो हेड जो थी वो सर खातून उसको हमने इनविटेशन दी थी सर लेकिन वो नहीं आई सर। तो सर इसको थोड़ा सा मैं वो कर लूँ सरदार इफ्तिहार अहमद ये है डिप्टी कंजर्वेटर है HHK का इफ्तिहार अहमद जिया ये वो है इसके साथ ख्वाजा मोहम्मद तायब ये भी मतलब सुबह से हमारे पास एजीके से लोग आए हैं पंजाब से आए हैं पंजाब से आए हैं मनीषिया प्राइमेट से आए हुए बलूचिस्तान से आए गिलगित से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो नहीं आ सके लेकिन गिलगित इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो है ना उनकी जी वहाँ पे उसका जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वहाँ पे चेयरमैन है मुआजम साहब वो आई हुई है वो भी यहाँ के स्टूडेंट है ICN की वहाँ पे आई हुई है जो है सर
اور اس کے جو ساتھ ٹیم ہے وہاں پہ جو ہے فہد بھنگش، یہ اس کے نیوز رپورٹ جو ہے ہماری چینلز یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ہے خیبر نیوز سے، مشرق ٹی وی سے، اور اس کے ساتھ آواز صبح کے، آج ٹی وی کے، GNN، اور ہم نے تو آپ خود اس کو دیکھ لیں گے. سر وہ ساری چیزیں سر آپ جو ہے چھوڑ ابھی سر آپ کے سامنے اور رکھ کے یہ سارے ابھی وہ راجش کا جو خلاصہ ہے اور پھر جو گروپ ہے اس کی پریزنٹیشن کتنا ٹائم ہوگا؟ یہ ابھی آپ کا انتظار کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ تقریباً سر زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگے گا. ٹھیک ہے سر. وہ بہت اصل کرنا چھوڑ جو تھا آپ کے خود اپنوں میں ڈاکٹر اقتدار گمل YLPF for human health and nectar for honeybee. یہ ساری جسٹ ہے آپ کی جو پریویس پریزنٹیشن ہے ان کی. یوکلپٹس پروڈکٹ میں نے صوفیہ کی جو ہے وہ مثال دی ہے. آپ دیکھیں فلائی ووڈ سے لے کر ہنی پروڈکشن تک اتنے بینیفٹس لوگ اٹھاتے ہیں اس سے، اور یہ بائی پروڈکٹ پروڈیوس کرتا ہے ان کے لیے. میجر جو ہیں ڈرائیونگ فورسز جو ٹو پلانٹ یوکلپٹس فار دا فارمرز آر وہ انکریزنگ گڈ ڈیمانڈ ہے ان دا مارکیٹ. unavailability ہے wood on farmland. high rate of biomass production ہے یوکلپٹس کا. each farmer became die-hard supporter. پاکستان میں یہ سچویشن ہے. farmers in اتر پردیش want only eucalyptus. یہاں بھی کنسپٹ آپ دیکھیں تو people want only eucalyptus from forest park. excess windbreak increases humidity. یہ کل پریزنٹیشن بھی تھی. increases photosynthesis activity. انٹرکراپنگ اسٹارٹڈ گجرات سے ہوئی 85 میں. یہاں بھی انٹرکراپنگ ہے. سکسیسفلی گرون آن مارجنل لینڈ. یہ پرومیننٹ ہے ہمارے ایریا کے لیے. موسٹ سوٹیبل بیکاز آف اٹس فاسٹ گروتھ. یہ بڑا فیکٹر ہے. گروتھ ویل ایون آن پور چائنا ہے. ایون لو انفیریئر فوڈ گرین کی ریپلیسمنٹ بھی ہوئی ہے بات. یہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ. کرٹیسزم جو کامنلی آ رہا ہے وہ ڈپلیٹ واٹر سپلائی. یہ ہاں پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں. دوسرا جو ہے افیکٹ وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ، افیکٹ سائل فرٹیلیٹی. آیا یہ متس ہیں، ٹروتھس ہیں یا ریئلٹی ہے ان میں کوئی؟ قاضی سائل اروجن لیٹس سی کہ ہے ایسا. It is similar to acacia plantation. اس میں اور acacia plantation میں کوئی فرق نہیں ہے. Undergrowth definitely
रिड्यूस होती है, वो सारी स्पीशीज में होती है, इसमें भी होती है। इफेक्टिव फॉर एरोजन कंट्रोल, ये ट्री हमारे इरिगेटेड एरिया में जहाँ वाटर लिमिटिंग नहीं है, इस किस्म का थर्ड स्टेज रूट सिस्टम डेवलप होता है और सरफेस पर वो रहता है। जब वाटर लॉग एरिया में बिल्कुल सरफेस के रोड इसकी जो है रूट सिस्टम रहता है। रेयरली गो 3 to 4 मीटर टॉप, मेरा ख्याल CFI ने भी यही प्रूव किया है कि रूट जो है वो रेयरली डू नॉट डिफर फ्रॉम पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट की कंजम्पशन वाटर की ज्यादा है, रूट सिस्टम भी बड़ा है। मोस्ट एफिशिएंट स्केर्स वाटर यूटिलाइजेशन, वाटर एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। ओनली कंज्यूम सब सरफेस सीपेज वाटर, इसकी ये प्रोमिनेंट चीज है, सब सरफेस सीपेज वाटर ये कंज्यूम करता है और पत्थर का एरिया बेस्ट सैंड ड्यून के ऊपर ये ग्रो कर रहा है। बेस्ट सिस्टम यूक्लिप्टस और सैंड न्यूटेंट्स का देख लीजिए। हाई फर्टाइल साइल अंडर प्लांटेशन है यूक्लिप्टस के, हाई फर्टाइल, और ये इन्होंने भी प्रूव किया है गढ़वालों वालों ने। न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्शन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिक कार्बन जो अभी बात कर रहे थे, इम्प्रूव्ड साइल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिलोपैथी, ये अंडर वेजिटेशन रिचर एज कंपेयर टू साल फॉरेस्ट जो है इंडियन, उसको अगर देखें तो उसके नीचे कम है, लेकिन यूक्लिप्टस के नीचे ज्यादा है। सर्टेन ग्रासेस ग्रो वेल अंडर यूक्लिप्टस, ये भी प्रूव हुआ है। लेसर देन पाइन एंड अदर स्पीशीज इसका लिलोपैथिक इफेक्ट है। रिकमेंडेशन में भी शायद आ जाए। लिटर लिमिट जर्मिनेशन, इसकी लिटर जो है वो सिर्फ जर्मिनेशन को लिमिट करती है। स्टडिंग ऑफ बॉर्डर ग्रोथ, यूक्लिप्टस और वाइल्ड लाइफ का जो मिजाज है वो क्या है, ये स्टेराइल नहीं प्लांट है कि इसके ऊपर बिल्कुल वाइल्ड लाइफ आती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इवन स्पाइडर जैसे, स्पाइडर भी हायर उनकी पॉपुलेशन हो जाती है यूक्लिप्टस। Arboreal and ground birds become abundant the way as in scrub forest. वो स्किप करके अब मैं केस स्टडी नहीं दिखाना चाहता आपको। इम्पैक्ट क्या है इसके सोशो इकोनॉमिक, लाइवलीहुड के ऊपर जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इसके भी हैं, सोशल भी हैं। एक्सेस टू क्रेडिट वो इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, ये इससे एडवांस। लैंड टेन्योर सिस्टम बेहतर हो सकता है। एनवायरनमेंट के क्या इम्पैक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, कंजर्वेशन करता है। नट्स क्रॉप है, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन बाहर ये टी गार्डन में पर्टिकुलरली नट्स क्रॉप है। इनकम और फूड सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है लाइवलीहुड की जब बात करते हैं। इकोनॉमिक की जब बात करते हैं तो हाई वैल्यू कैश क्रॉप है, पाकिस्तान में यही सिचुएशन है। सोशल जब हम बात करते हैं तो साइन ऑफ एफ्लुएंस एंड वेल्थ है। एक्सेस कोलैटरल टू बारो मनी फ्रॉम बैंक्स और इंडस्ट्री भी कोलैटरल में जा सकते हैं। लैंड टेन्योर एंश्योर्स लैंड टेन्योर स्कैर्सिटी। और एरोजन कंट्रोल कंजर्वेशन की जब बात करें तो प्रोमिनेंट इसका करेक्टरिस्टिक एरोजन कंट्रोल। सम प्लांट्स ग्रो वेल अंडर यूक्लिप्टस कंडीशन। मैं ये पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं और ये देख लीजिए, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो, लेकिन साइमल्टेनियसली उनकी सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हैं और यूक्लिप्टस उसमें शामिल है, लेकिन यूक्लिप्टस से बड़े बड़े भी हैं जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो दुनिया में मौजूद हैं। ये हमारे लिए इस किस्म की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। फ्यूल वुड शॉर्टेज है हमारे पास,
اس کو بھی اس کی ڈیمانڈ یہ پوری کرے گا. اور ایک سوال ہے آپ سے آخر میں کہ کیا گرین وال انوائرمنٹ فرینڈلی ٹریز سیو کر ڈیزاسٹر سے ہمیں انوائرمنٹل ڈیزاسٹر سے سیو کر سکتی ہے؟ ہاؤس کیا کہتا ہے؟ آنسر یس ہے یا نو ہے؟ میں اپنا آنسر آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا تو بگ نو ہے. وٹ ایور یو پلانٹ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ٹری بھی پلانٹ کریں گے تو ڈیزاسٹر سے ہم نہیں بچیں گے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ یوکلپٹس کو آپ کو انوائرمنٹل فرینڈلی ٹری کنسیڈر کریں نہ کہ انوائرمنٹ کے اگینسٹ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. ان کو ایک کوشچن دیا گیا تھا اور انہوں نے جو اس پہ ڈسکشن کی ہے میں انوائٹ کرتا ہوں گروپ 1 سے سفدر علی شاہ صاحب کو جو گروپ لیڈر تھے اس کے. آپ ذرا وہ آپ آئیں. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ میں جی راجہ ظریف صاحب نے پریزنٹیشن مجھے دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی ہے جو جس لیول کی محنت انہوں نے کی ہے, جو چیزیں انہوں نے شارٹ ٹائم میں ٹو دا پوائنٹ چیزیں مجھے بتائی ہیں. بھائی صاحب ریئلی آئی ایم ویری امپریسڈ. اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور اس علم سے وہ اپنی مخلوق کو فائدہ دے. صرف ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا, یہ جو آپ نے آئل کی بات کی, یوکلپٹس کا جو آئل ہے تو یہ سنا ہے آسٹریلیا میں ماسکیٹو ریپیلنٹ آئل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اس ہاؤس میں ابھی یہ زیدی صاحب بھی ہیں, کوئی انڈسٹری سے بھی لوگ مزید بھی ہوں گے. اس سائٹ پہ تھوڑی سی کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی اس کی جس طرح آپ نے خود شیئر کیا کہ فارمر اس کو لو کرتا ہے اور ہمارا پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہوا ہے جہاں بھی ہم گئے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ پہلی ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ راشی لگا کے دیں تو ہم زمین آپ کو دیں. وہ ایشو صرف یہ ہے کہ جو فارسٹ کور تھا ہمارا, جو اسٹیٹ لینڈ تھی اس کے اوپر تو الحمدللہ جو بھی ری ایپلیکیشن ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے کر دی ہے. ابھی جو 5% سے آگے 15% کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, 10% مزید انکریز کرنا ہے ملک کا فارسٹ کور, تو وہ بیرن لینڈ ہے وچ بلانگ ٹو کمیونٹی ناٹ ٹو دا اسٹیٹ. اس میں جو کمیونٹی کی جو ڈیزائر ہے اس کو آپ کبھی بھی اوور رول نہیں کر سکتے. اس میں ایک چھوٹی سی جو میں پوائنٹس یہاں پہ شیئر آپ سے کروں کیونکہ میں بہت انٹرسٹ ہوا آپ کی پریزنٹیشن سے, اور یہ چیز بھی آپ کے نوٹس سے رہے کہ اگر ہم نے میں صرف واٹر لاگ اور سیلائن ایریاز کو چھوڑ کے ایون کہ ایکسٹریم سیلینٹی بھی جہاں پہ ہے تو وہاں پہ بھی ٹیمرکس اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹ کے طور پہ نکلا ہے. اس کے علاوہ ہائیلی ڈیلوڈیڈ جو ہمارے ڈیمز تھے یا واٹر شیڈس تھے جہاں پہ ایون کے کانٹے بھی گرو نہیں کر رہے تھے بیکاز آف ایکسیسو اوور گریڈنگ, ادھر کمیونٹی کی ڈیمانڈ پہ جو یوکلپٹس ہم نے لگایا تو کئی سائٹس ایسی تھیں کہ یوکلپٹس کی گروتھ بڑی سٹنٹڈ ہے, لیکن جو لوکل فلورا وہاں پہ آ رہا ہے ہمارا یہ جو زیزیپس ہے, جو لوکل زیزیپس چھوٹے سائز والا وہ ہے, اس کو میں نے دیکھا. اسی طرح یہ ہمارا اکیشیا موڈیسٹا کی جگہ پہ وہ آ رہا ہے, یہ ہمارا جو وائلڈ آئلم ہے وہ آ رہا ہے, اس کے علاوہ ڈینونیا آ رہا ہے. تو ویسے آپ سے شیئر کرتا ہوں, اللہ آپ کو توفیق دے کہ آگے بھی کسی فورم پہ آپ جائیں کہ وہ آپ سے یہ صرف پریکٹیکلی چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں کہ اگر شاید ہی مجھے کوئی ایسی سائٹ ملے کہ جس جگہ پہ یوکلپٹس کے ساتھ کوئی اور لوکل ایسوسیٹس وہاں پہ نہ آئے ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہتے ہیں جو ہمارا ایک ارلی کولونائزر کا رول یہ پلے کر رہا ہے ان ایریاز میں جن ایریاز میں ایٹ لیسٹ پچھلے 50 سال سے کوئی ویجیٹیشن نہیں ہوئی, تو یہ چیزیں بھی آپ کو کائنڈلی اپنے اس میں رکھ لیں. جو انڈر گروتھ کی آپ نے بات کی, بڑی ٹھیک بات کی, لیکن اس میں بہت سارے کیسز میں لکیلی ہم نے جو اسپیسنگ رکھی ہے تو وہ 10 بائی 10 کی اسپیسنگ رکھی ہے,
اور اس स्पेसिंग में कई जगह पे मैंने देखा है तो शीशम बड़ा अच्छा आ गया नेचर से और उसकी ग्रोथ भी बड़ी साथ साइमल्टेनियसली इसके साथ कम्पीट कर रहा है। कई जगह पे नाइलोटिका इसके साथ आ रहा है, वो बड़ा अच्छा कम्पीट कर रहा है। टैमरिक्स की जगह पे इसको डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरह के ये जो एक हमारी जनरल मिसपरसेप्शन थी, इसके जो एलोपैथिक इफेक्ट्स हैं वो नेचुरली होते हैं और इसके भी हैं, लेकिन जिन स्पेसिंग पे जो हम लगा रहे हैं उसके अंदर इनको इतना प्रोविजन मिल रही है, इतना स्पेस मिल रहा है कि लोगों को हो रहा है। मैं सिर्फ सिंपल आपसे ये शेयर करूंगा, बाकी भी हाउस से ये चीज मैं बड़ी ऑनेस्टली आपसे ये चीजें मैं शेयर कर रहा हूं कि जब कम्युनिटी की ख्वाहिशात को हमने रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी, उसके साथ जो अल्लाह पाक ने बरकत डाली है कि जो लोकल फ्लोरा वहां पे आ रहा है ना, तो दैट इज अ मिरेकल। इस चीज पे भी आप लोग सारे टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इन चीजों को आप किसी भी फोरम पे कोई ऐसी बात होती है, बेसिकली ये मुल्क हम सब का है। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस मुल्क के ऊपर 5% फॉरेस्ट कवर हो और दुनिया के लीस्ट फॉरेस्ट कवर्ड कंट्रीज में हमारा शुमार हो रहा है और दुनिया के मोस्ट 7 वल्नरेबल कंट्रीज में हमारा शुमार मतलब हम वो हो रहे हैं। इस पॉइंट को बड़ा फोकस करने की जरूरत है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें बोलने की जरूरत है कि जी आप यूकेलिप्टस लगाते हैं। इशू ये है कि मैं कल ही हमारे जो एक सीएम है परवेज खटक साहब और हमारे वो चिराग सीमेंट की मैनेजमेंट उनके ओनर भी थे, उनके साथ एक मीटिंग थी, तो मैंने उनसे ये शेयर किया कि अगर 5 साल के लिए अल्लाह पाक ये पूरी जमीन से इंसान को और ये हमारे जानवरों को अगर उठा लें तो 5 साल बाद ये सारी जमीन जो है इस पे घना जंगल होगा। जो चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है कि सिंपल प्रोटेक्शन की वजह से आपकी वेजिटेशन वो बड़ी अच्छी तरह आ रही है। इसके अलावा आपने जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट शेयर किया, स्पेशली इसकी आपकी क्रेडिट की आपने बात की, तो वो जो रिटर्न हमें मिल रहा है मेरा ख्याल है उसके ऊपर जितना भी ज्यादा लिखा जाए, जितना भी ज्यादा बोला जाए कि बेसिकली लास्ट वीक में गया ये एक्स फाटा जो हमारा था भारत एरिया साउथ वजीरिस्तान में, आप यकीन करें कि मुझे देख के वो रोना आ रहा था कि हम कितने जालिम लोग हैं कि हमने कितने जुल्म किए हैं। वो उसके एक पौधा कहीं से उन्हें मिलता है तो वो उसको इस तरह संभाल के रखते हैं कि जिस तरह शायद हम लोग जो है वो इसको जोरदार को हम संभाल के नहीं रखते। तो वो काइंडली आप लोग जो बैठे हैं, आप लोगों को अल्लाह पाक ने इल्म भी दिया हुआ है, आपको अल्लाह पाक ने जुबानें भी दी हुई हैं, आपके हाथ भी आजाद हैं कि आप हमारी तरह कैदी नहीं है। हम सरकारी मुलजिमान है ना, सरकारी मुलाजिम जो है वो मुलाजिम नहीं होता बल्कि वो मुलजिम होता है। एक हाथ से आप खुल के आगे कोई वो बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। अब ये सिर्फ साउथ वजीरिस्तान का आप अगर विजिट कर लें तो मुझे हैरत है कि वो लोग हीटिंग के लिए और खाने पीने के लिए कितनी तकलीफें वो उठाते हैं, या मसाजिद में पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, नमाज के लिए, वुज़ू के लिए। इन चीजों को वो देखें और ये फर्दर जो हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है, ये जिस मुल्क का रफली मेरी ये असेसमेंट है कि मोर देन 60% एरिया हमारी रेंज लैंड और बैरन लैंड और इस तरह की लैंड है कि जिनके ऊपर ना एग्रीकल्चर है, ना इनके ऊपर कोई इंडस्ट्री है और ना इनके ऊपर कोई ह्यूमन हैबिटेट है। तो इस चीज को भी आप काइंडली जरूर कंसिडर करें। थैंक यू सर। मुझे कहते 70s की बात है, आफ्टर डिसमेंबरमेंट ऑफ बांग्लादेश, तो फार्मर एक उसने अपने इरिगेटेड लैंड में टोटली कन्वर्ट कर दिया पॉपुलर के लिए, और जो स्ट्रीम फ्लो था उसमें यूकेलिप्टस लगा दिया। पॉपुलर का तो मुझे समझ आ रही थी कि मैट इंडस्ट्री में उसकी बड़ी खपत है और हम उसको ट्राई भी कर रहे हैं। तो मैंने जब पूछा ये यूकेलिप्टस जो है ये ट्री
आपने क्यों कहा मैं हद पर मैं ने कहा आप इस यूकलिप्टस को ये वक्त है हमारे लिए कि इसका दरख्त को हम मुसलमान नाम एक सोशल सारे फैक्टर वो कंसिडर करता है तब वो क्राफ्ट ले। तो मुश्किल प्रॉब्लम ये है कि जो प्रो लोग हैं जो यूकलिप्टस के हक में हैं वो यूजर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ग्रोअर हैं, सबसे लास्ट जो है वो फॉरेस्टर है। लेकिन जो अपोजिट हैं वो हल्का अहमद की तरह एनवायरमेंटलिस्ट है, मीडिया के लोग हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी लॉबी है। हमारे पास एक स्ट्रांग आपका मीडिया सेल होना चाहिए जिसमें ये टेक्निकल लोग हैं और वो विद प्रूफ विद रिसर्च उनको जवाब दें और खुद का जवाब दें कि आप साबित करें कि ये एनवायरमेंटली इतना ज्यादा डिग्रेड कर रहा है एनवायरमेंट को पाकिस्तान में, दूसरे चीज नहीं कर रहे, सब पंप करते हैं वहां मोर और लेस सारे कर रहे हैं। लेकिन एक किसी ने देख लिया उसकी रूट्स अगर वो वेल में चली गई हैं तो वो कहेगा जी चश्मे खुश्क हो गए, वेल खुश्क हो गया, विच इज नॉट। तो हमें खुशी है आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है। जब तक इसके ऊपर रिसर्च अब हो सकती है, प्लांटेशन के ऊपर साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं क्या हमारी सोसाइटी के लिए सोशली क्या बेस्ट है, एनवायरमेंटली क्या बेस्ट है, इकोनॉमिकली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर अगर इजाजत हो तो ग्रुप पर तो पहले ग्रुप जो है वो मैं इनवाइट करूंगा सबसे शाह साहब को, वो लीड कर रहे थे और वो आगे प्रेजेंट कर। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप नंबर 1 जो है वो 8 बंदों में मुश्तमिल था। मेरे अलावा जो है ना 7 टेक्निकल फॉरेस्टर जो है। ग्रुप नंबर 1 में 8 मेंबर्स थे और मेरे अलावा 7 जो है वो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिशनर फॉरेस्टर थे। मैं ग्रुप नंबर 1 के व्यूज को जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल व्यू या मेरे प्रोफेशनल व्यूज नहीं है। प्रोफेशनल आप व्यू नहीं है। नहीं, प्रोफेशनल व्यूज तो ये नहीं है सर, मतलब ये तक जो इस वक्त फोकस उसे एक और चीज पे है। मैंने कल अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कवर किए, तो मैं इससे पहले सर थोड़ा सा जो है ना वो लाइटर नोट से जो है वो बता दूं। वो अभी मुनावर साहब को बता रहा था कि पुराने उस वक्तों में बंदर जो है वो तेल बेच रहा था, ये पेलिकान का। तो हमारे स्टाफ वाले इसको तंग करते तो हमारे कुलीग के पास है कि अगर थोड़ा सा कागज का टुकड़ा दे ताकि बाजार में लोग ये तंग न करें। उसने स्टाफ को कहा कि इसको पोजीशन लाइसेंस दे ताकि बेचारा अपनी रोजी कमाए। तो दूसरे दिन जब वो गया तो बाजार में लोगों को दिखा रहा था कि देखो मक्का मैंने इसकी तस्दीक की ये तेल सही है। तो मेरी मौजूदगी से मतलब वो मतलब मेरे लोग बाद में सर्टिफाई न करके सिंडिकेट करें। बहर जो टास्क हमें ग्रुप को असाइन हुआ था, ग्रुप के पर्सपेक्टिव में जो था घेरा आया हमें 18 सेंचुरी के बाद इस स्पीशीज को नेचुरलाइज करना चाहिए या नहीं। तो सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वो जो है ना इस पे एग्री थे कि आउट ऑफ द 4 स्पीशीज यहाँ से जो दिए गए हैं उसमें यूकलिप्टस कैमेडोनेंसिस जो है वो मोस्टली यहाँ पे अडॉप्टेड है। तो इसको अगर हम नेचुरलाइज कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ग्रुप मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे आए हैं उसमें यही था कि इजी टू प्लांट है, मैनेजेबल है, ये फास्ट ग्रोइंग है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज। नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव पे थोड़ा सा वो आया। हमारे बाद का ख्याल था कि अगर इसको फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है तो फेवरेबल एनवायरमेंट में ये इन्वेसिव बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रुप जो है वो इस कहता कि नहीं ये नॉन इन्वेसिव है। डेफिनेटली लोकल डिमांड ज्यादा है फ्यूल रूट के लिए पर्सपेक्टिव में या इंडस्ट्रियल रूट के लिए, तो इसकी डिमांड ज्यादा है। एंड आई सपोर्ट इट पर्सनली एज वेल। जो नंबर 5 है गुड फॉर प्लांटिंग इन सलाइन वाटर लॉस एनवायरमेंटल लैंड। इसमें तो मतलब ये हमारे मेजर इंडिकेशन भी यहाँ तक है। ओपिनियन जो है यूकलिप्टस की प्लांटेशन की वो ये 2 चीजें इस पे ली गई थी। मतलब
कल से जो प्रेजेंटेशन आ रही थी, एक पर्सपेक्टिव ये प्रेजेंट हो रहा था कि भाई ये नॉन ब्राउजिंग स्पीशीज है। हमारे इसकी ग्रुप में डिस्कशन हुई कि जब हम कहते हैं कि मल्टीपर्पज स्पीशीज या कि एरियाज में हार्डर एरियाज हैं जहां पे मोस्टली लोग जो है ना वो जरा सिर्फ इसलिए नहीं उगाते कि उसको टिम्बर या फ्यूल मिले, बल्कि उसको सर्दियों में पाउडर भी मिले। तो ये एक हमारे जो ग्रुप में मोस्टली जो फॉरेस्टर ग्रुप है वो इसकी एक क्वालिटी समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसको बतौर क्वालिटी नहीं लेता कि ये कुछ एस्पेक्ट है, फिर ये मल्टीपर्पज नहीं करिए, पाउडर पर यूज नहीं होगा। और इनके ख्याल में क्योंकि ये नॉन पाउडर स्पीशीज लिहाज है, इसकी सर्वाइवल और सक्सेस का रेट ये भी है कि इसके ऊपर कोई चीज आ नहीं रही है, इसलिए जो है ना वो ज्यादा वो है। एलोपैथी के ऊपर कल भी बात हुई थी, कुछ एलोपैथी इफेक्ट थी, वो ये था कि भाई ये नेगेटिव एलोपैथिक है, कल कुछ पॉजिटिव एलोपैथिक भी बात आ गई, लेकिन ये इस पे मतलब थोड़ा सा रूलिंग देना मुश्किल है। ये बिल्कुल क्लियर है और ये जो है ना कोई वो नहीं है, क्योंकि जो उस्ताद मोहतरम ने बताया कि जो भी स्पीशीज होंगे, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल जब हम बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट में बात करते हैं तो हम कहते हैं जितने भी स्पीशीज नेटिव है वो अडॉप्टेड होते हैं, उसकी अच्छाइयां या बुराइयां जो भी है वो सोशली एक्सेप्टेबल होती है, वो एनवायरमेंटली भी एक्सेप्टेबल होती है। इन्वेजन का या एलियन का मतलब ही ये है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। डेफिनेटली नॉट प्रेफर्ड बाय वाइल्ड स्पीशीज, उस पर बात की भी गई, उस पर बहुत सारे रिसर्च है। कल मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने ये बात की थी कि जब ये नेटिव ऑस्ट्रेलिया में है तो वहां पर इशू नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसके साथ एसोसिएटेड फाना मौजूद है। चूंकि हमारे यहाँ एसोसिएटेड फाना नहीं है, सिलेक्टिव प्लांट लेके आएंगे, इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही। तो अगर हम इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कंपेरिजन उसके साथ नहीं हो सकती कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर मैं कल बता चुका था कि 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है 9.2 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर वो यूकेलिप्टस ही है। डिलेड डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर, अभी भी उस्ताद मोहतरम ने बात की कि जर्मिनेशन के शायद ये भी एक इम्पैक्ट आ रहा है कि इसके जो लिटर पड़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर या फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर कंपेयर टू आवर नेटिव स्पीशीज और अदर स्पीशीज बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है टू डिकम्पोज। तो अगर वहां पे कोई सीड पड़ा भी है तो वो शायद एक्सेस टू साइल जो है ना उसको अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम अवेलेबल ये उसमें आ रहा है। लो क्वालिटी टिम्बर, कल मुस्तफा साहब ने तो बात की थी वो अपने उस पर, लेकिन हमारी ग्रुप की कंसेंसस इसी पे रही कि इसकी टिम्बर वैल्यू वो नहीं है, अदरवाइज पूरे मार्केट में जो है वो इस तरह दूध का इस्तेमाल है या कीकर का है या शीशम का है, तो कम से कम इसकी फर्नीचर वगैरह जो है वो होता है, इसके दरवाजे बन चुके होते, तो इस तरह वो नहीं रहा। हाँ, ये इस पे जो है ना भी वो था कि मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप नो की तरफ थे, कुछ येस की तरफ थे। बहरहाल चूंकि ग्रुप की परसेप्शन है तो ये नहीं, आप सवाल पढ़ लें ना। वही मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अमंग द ग्रुप जो है सम ऑफ द मेंबर्स वर ऑफ ओपिनियन की यस, क्योंकि कल भी जो प्रेजेंटेशन हुई थी दराज साहब की या किसी और की, जो आप कंपेरेटिव स्टडीज कर रहे थे, तो उसमें ये चीजें सामने आ रही थी कि इसका इंटेक जो है वो पानी की, वही बात फिर भी जो हमारे कुलीग भी कह रहे थे कि इसमें ये क्वालिटी जरूर है, अगर इसको पानी मिलता है तो ये ले रहा है, अगर इसको नहीं मिलता तो फिर ये ग्रो भी नहीं कर रहा ना। यानी वो पानी जो है ना उसकी बायोमास के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। हाँ, एग्री विद जनरल परसेप्शन दैट यूकेलिप्टस, ये ग्रुप ने हालांकि मेरी वजह से मुझसे जो है अगर से एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा खुदा का खौफ कर थोड़ा सा ध्यान रखें, तो फिर ये केस के ऊपर चीजें हैं। लेकिन आगे मैंने बात की है कि जब हम कहते हैं कि ये रिसर्च एस्पेक्ट क्या है यूकेलिप्टस की, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये नेचुरलाइज हुआ है, अगर चिकन जो बात हुई थी पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री 50 से पहले की नहीं है। आप जब इंडिया की बात करते हैं 200 साल या 100 साल की पुरानी है, तो अभी भी हम कह रहे हैं कि ये मुल्क भी हमारा है, तो बजाय इसके कल हमारा नाम भी शोहरदा की बजाय दूसरे लोगों में आए, वी वुड लाइक एंड वी वुड बी रिक्वेस्टिंग द फोरम कि भाई वो प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करें बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट के ऊपर, कि उसकी सारी चीजें मार्केट में लोगों के सामने कंज्यूमर के सामने रखते, उसकी पसंद है वो बैंगन खरीदता है या भिंडी खरीदता है, फिर फर्दर रिसर्च ऑन वाटर इंटेक, क्योंकि इसके ऊपर दो आ रहा है। हम कंक्लूसिव नहीं कह सकते कि ये ले रहे हैं या नहीं ले रहे। कल खान साहब की जो थी उसकी कुछ और एस्पेक्ट आए थे कि यार बिल्डिंग के करीब न लगाए या जो है ना उधर न लगाए, क्योंकि रूट सिस्टम जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करता है वगैरह वगैरह। और वही बात कि अगर ये सरफेस इसकी रूट सरफेस वाटर के ऊपर है,
जब ये मार्जिनल लैंड के ऊपर वाटर लॉग एरिया में जब उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट सरफेस से मिल रही है तो उसको अंडरग्राउंड वाटर पे जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब आप उसका रूट सिस्टम देखिए उन एरिया में जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर देखिए कि इसकी रूट सिस्टम कहां तक जा रहा है। तो क्या बताया गया था 48 फीट या 54 फीट तक था। ये जो उस पर बात रही ना रिसर्च एंड मार्केट यूटिलाइजेशन, मैं इसको सपोर्ट करता हूं जाती तौर पे भी, प्रोफेशनली भी, कि जो हमारे इंडस्ट्रियल रूट की रिक्वायरमेंट है खासकर जो कम बजट रूट की है, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग टिम्बर और इम्पोर्टिंग बोर्ड वगैरह जो श्रीलंका से इंडस्ट्री आ रहे हैं, हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। और मैं इसका प्रमोटर हूं कि इसको बतौर क्राफ्ट उन एरिया जहां पे बाकी इम्पैक्ट नहीं है, फिर इसको शार्ट रोटेशन क्राफ्ट के ऊपर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, should the eucalyptus be included in future plantation program? सबकी ओपिनियन ये है suitable sites when there is no endemic species। अगर आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन इस तरह सेक्रेटरी साहब ने बताया कि इसके नीचे भी वहां पे जो है ना वो ओलिया भी आया है या शीशम भी है, तो इसका मतलब है कि वो स्पीशीज वहां पे था, लेकिन उसको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही थी। जब आपने यूकेलिप्टस को प्लांट किया तो द प्रोटेक्शन एंड द मैनेजमेंट विच वाज आफ्टर टू वो जो राजा गरीब साहब वाली बात है वो फिर गलत हो गई थी। ये नर्सिंग क्राफ्ट है। इन्होंने कहा कि मतलब नर्सिंग क्राफ्ट नहीं है, लेकिन यहां पे तो ये बात साबित हुई जो हमारी सेक्रेटरी साहब की ऑब्जर्वेशन यहां में भी देखा है कि ये नर्स करता है और फिर उस बाकी स्पीशीज को मौका दे कि वो नर्स करता है। अच्छा जी, दूसरा ये था कि डेफिनेटली मैं सपोर्ट करता हूं इसको भी जो सैलाइन वाटर का एरिया है, किसको अच्छा नहीं लगेगा, बजाय इसके कि वो तोड़ वाले एरिया में से या एक जड़ा इलाके से गुजरे और वहां कुछ भी न हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर ये बेहतर कर रहा है तो वी शुड प्रमोट ओवर देयर इन दोस पर्टिकुलर एरियाज। मार्केट वेस्टलैंड्स एंड एप्रोप्रिएट इकोटाइप्स, बिल्कुल फ्लड प्लेन्स एरिया बिल्कुल कर, ताकि आपके वो डैमेजेस जो है वो न हो, तो मल्टी $million के डैमेजेस फिर हमें फ्लड की शक्ल में मिलते हैं। रिकमेंडेशन जो हमारी शुड बी अवॉइडेड definitely in natural forest, whatever type of the natural forest it is, whether it is scrub or it is conifer, उसके हमारी ग्रुप की कंसेंसस है कि वहां किसी किस्म का यूकेलिप्टस जो है वो नहीं लगना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड पे आपकी एक क्लास एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर कंट्री है, तो सिर्फ इंडिविजुअल के इस उसको मद्देनजर न रखें जो मुझे 2 लाख रुपए मिले, क्योंकि मुल्क की फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और जो नई नई चीजें आ रही है वो मानसेंटो वाले हुए आपको सब्सिडी बेचने के लिए, तो कल आपको अपनी सीट के लिए भी जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी है। तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बाकी स्पीशीज आपके पास है, चाहे इसमें आप उसको लगा दें, वो शेल्टर बैठते हैं या आपको वेंट रख के चाहिए। अर्बन एरियाज एंड रोड साइड, इस पे थोड़ा सा ग्रुप की कंसेंसस नहीं डेवलप हो रही थी। सम ऑफ द पीपल वो आवर ऑफ द ओपिनियन, लेकिन हमारे जो कोलीग्स थे उसने कहा कि चूंकि इसकी लकड़ी जो है वो बहुत ब्रिटल है, सॉफ्टवुड है, आंधियों में जो है ना ये गिरता है, शाखें टूटती है। और मेरी अब की ऑब्जर्वेशन भी है कि बड़े एक्सीडेंट हुए इससे, कि जब ये विंड वगैरह में इसकी शाखें टूट जाती है और गाड़ी के ऊपर, तो अगर साइड पे आप रीजन प्लांटेशन में आ सकती है विदाउट किसी उसको डेंजर को दूर करने के लिए, अदरवाइज जैसा कि ये आपकी उसमें उसमें ही हमने कहा कि क्योंकि सबसे पहले रीजन प्लांटेशन की बुनियादी वजह ये होती है कि आपने वहां सोलेस देना होता है, आपने वहां पे उसको नहीं वो करना थ्रेटन लाइफ को। अर्बन एरिया में वो भी देख के अर्बन पॉलिसी में अगर आपके पास इससे कोई अच्छा स्पीशीज है तो डेफिनेटली करें। रिकमेंडेशन जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री के लिए है, शार्ट रोटेशन कार, मैंने कहा मैं सपोर्ट करता हूं इसको कि हमारी जो उसकी है पार्टिकल बोर्ड या MDF वगैरह जो भी है, बजाय इसके कि हम बने बनाई चीजें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें इसको इस तरह भी करना चाहिए। कल भी प्रेजेंटेशन आई थी कि हमारे नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर अगर प्रेशर कम हो रहा है तो डेफिनेटली ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। रिकमेंडेशन यूकेलिप्टस इन द कंट्री, हाँ इस पे बात आई थी आज भी ये फिर कंसेंसस डेवलप हुआ कि इस वक्त टेक्निकल डिसीजन नॉन टेक्निकल लोगों के हाथों में गई है, तो उससे ज्यादा जो है वो एक सोशल या पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तो ये हमारे ग्रुप की कंसेंसस है कि एक नेशनल फॉरेस्ट्री काउंसिल हो जिसमें मोस्टली जो है ना प्रोफेशनल फॉरेस्टर हो, जो टेक्निकल तरीके से चीज करने के लिए स्पीशीज जो है ना ये अडॉप्टेबल है या ये सूटेबल है या ये नॉन सूटेबल है। मेरा ख्याल है। थैंक यू।